So subscribers have been asking me so many questions. Yesterday in my video, I mentioned that I will start answering at maybe one question whenever possible, at least once in a day or two. Like every 2 days I'll answer at least one. There seems to be so many questions people are asking me, so I'll do that. What appears to be little flattish start at this point of time for the Nifty. Uh, I try to come to the point straight away, then show you charts, and uh, may turn out to be a little difficult session. You may see many falls in the morning session today. Uh, so for example, you can see some coming 10:30 to 11:30 in that time frame, 9:20 to 9:50 in the early parts as well. And things can get a little rough as we start trading in the morning session particularly. Also somewhere between that range 11:30 to 12:30, okay, can get a little difficult, but there could be a few good rises as well today, surprisingly, although the Nifty and the Gift Nifty is not indicating all that, but possibility of some rise as well coming, say between 12:30 and 1. I've given just a few timings, and hopefully they can give you some idea of where the markets could be trading today. Over the next couple of days, so it's a little different from the way the Dow, S&P, Nasdaq closed on Friday. This is what I had indicated in my weekend video as well. Yesterday I've given a list of a few good stocks which can do well. You can go back to my video and refer to that as well. We may see a little tentative start to begin with this week. Our targets of the Nifty remain. So we still have, although our targets retain, but still there could be little nervousness over the beginning of this week. That's what I believe can happen. So be a little careful. I've given various fall timing, some rises also. Rises could be decent as well. Okay. So to get to know more, do join our Premium or Premium Plus. Premium gives you 3 days predictions in advance. Premium Plus gives you 10 to 12 days in advance. Or you can just join the very simple election special package, which gives you daily predictions. Okay. It also gives you, of course, various options with the strike price and stop loss. Number to get in touch is 9820861044. भाई और बहनों, जो दिख रहा है फ्लैटनेस निफ्टी में, वो और जाइएगा नहीं, प्लीज डोंट गो, दैट आई स्टिल हैव टू आंसर वन क्वेश्चन ऑफ वन सब्सक्राइबर. सो hopefully I think it will be good. I love interaction with people, huh? Not just one person saying and then going away. Why not? If you have question, but do remember there'll be a little wait. Okay, so if you put in your question today, you're welcome to do that, but then give us some time. Okay, there will be little waiting because already many people, but I promise I will try and answer as many questions as possible. Don't make it stock specific at this point of time, because we have our own research which is ongoing. Our stock recommendations are very powerful. Just stick to that. Okay, but if you have any general questions about the market in general, about the economy, about politics, about karma, about spirituality, you can ask any of these. Make it a little lively, interactive. I like to be a little lively with people. All right, in the very to help people's lives, if I can make it better in any form. So मॉर्निंग सेशन में कुछ गिरावटें दिखने की पॉसिबिलिटी है. हालांकि निफ्टी इस वक्त काफ़ी फ्लैटिश दिख रहा है. कुछ 10:30 11:30 के बीच में हो सकता है. शुरुआत आते ही थोड़ी देर में गिर सकता है 9:20 9:50 के बीच में. और फिर भी हैं, और भी सेशंस हैं. जैसे दिन के समय एक सेशन 2 दिखाई दे रहे हैं. वहाँ आपको काफ़ी केयरफुल रहना होगा. लेकिन कुछ 2 बरतें भी अच्छी दिखाई दे रही है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरावट का ही दौर दिखाई देगा.
इस हफ्ते में एक पीरियड आने वाला है जहाँ पे कुछ घंटे कंटिन्यूस गिर सकता है मार्केट, लेकिन बुरा नहीं है। अभी भी हमारे निफ्टी के थोड़े ऊपर के टारगेट्स मेंटेन हैं। मैंने कहा था वीकेंड वीडियो में कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस आ सकता है, तो आप देख भी रहे हैं हैंसंग वगैरह भी इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। लेकिन ये नहीं कि बस अब हो गया जो और पूरा हो गया, नहीं, ऊपर और जाने की संभावना थोड़ा स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड था। वही मुझे अभी भी लग रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक इतना थोड़ा नर्वसनेस रहेगी और कुछ बरत भी आने की संभावना है, जैसे 12:30-1 के बीच में। और भी कुछ टाइमिंग्स हैं जो मैं डिटेल में दे रहा हूँ। अपने प्रीमियम प्लस ज़रूर ज्वाइन करें। प्रीमियम आपको 3 दिन एडवांस में देता है, प्रीमियम प्लस 10-12 दिन एडवांस में देता है प्रेडिक्शन। और फिर आप डेली प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो इलेक्शन स्पेशल ज्वाइन करिए, अभी भी ओपन है वो, ठीक है। और सब में आपको स्ट्राइक प्राइस स्टॉप लॉस के साथ दिया जाएगा। संपर्क करने का नंबर सबके लिए वही है 9820861044। तो एक प्रश्न आज क्विकली आंसर कर लेता हूँ। ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लोग आप अपने लाइफ के बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं, भाई क्या आपको लग रहा है। तो एक प्रश्न है कि इन्वेस्टमेंट्स में आप इतना बताते हैं, ये प्रश्न है कि टेक्निकल आप बहुत एनालिसिस देते हैं, खुद का भी विश्लेषण करते हैं, कभी कभी आप किस तरह से इंसान को जीवन व्यतीत करना चाहिए वो भी बताते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताइए, जो ना करने से हमें कुछ लाभ मिले। भाई देखिए, मैं तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड और हमारे खुद के लाइफ में भी इम्पैक्ट हो सकता है। ट्राई टू बी हेल्पफुल और गलत नहीं। देखिए आप जो है ना, दूसरे का, जो मैं सबसे बड़ा चीज़ समझता हूँ कि आपको बहुत पावर दे सकता है कि दूसरे का दुख आप अपना समझिए। और उस वक्त आप किसी के साथ जब कोई परेशानी में है, किसी दुख में है, तो आप उनके साथ सिंसियरली रहिए, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बात करिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने देखा है, बहुत पावर दे सकती है। एक्चुअली आप उसके लिए कुछ करिए, सिर्फ बातें करके भाग मत जाइए। अगर किसी के घर में किसी का निधन हो जाता है तो आप उनसे थोड़ा उनको संभालिए, ऐसे भाग मत जाइए। आजकल तो ऐसा हो गया है कि निधन हो गया है और परिवार वाले शादियों भी अटेंड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ, संगीत, मेहंदी। तो जिसके घर में निधन, एक करीब के हैं रिश्ते, उनके घर में निधन हो जाता है और दूसरे ये सब इतने सारे फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं दूसरे किसी रिलेटिव के, ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। तो ना करें ऐसा। अगर आप किसी दुखमंद के साथ रहेंगे उसके कठिन पीरियड में, तो ईश्वर भगवान भी आपके साथ रहेगा जब आपका कठिन टाइम आएगा। और वैसे भी आपके इन्वेस्टमेंट्स में ये एक पावर देगा। अगर ये सेक्रीफाइस आप किसी के लिए कर ले, ना जाइए फिर, ठीक है, गलत है इतना ज़्यादा उमंग करना। जब एक क्लोज व्यक्ति के घर में निधन हो गया है तो अब फिर दूसरे जगह जाके और एंजॉय कर रहे हो, गलत बात है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना करना चाहिए। फिर उसको जब सुनाई देगा तो और दुख बढ़ जाता है। आप उल्टा जाके हेल्प करिए उसको, किसी पूछिए कि क्या आपको कोई ज़रूरत है, अकेले हैं आप, मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। चलिए, एक प्रश्न आंसर किया, दिल से आंसर करता हूँ। हो सकता है इसके लिए जो लोग समझ पाएँ, ये बहुत डीप मीनिंग का था, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, इवन पॉलिटिक्स के, लेकिन पॉलिटिक्स अवॉइड करिए अभी फ़िलहाल मैं भी क्या कह सकता हूँ, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। तो इकोनॉमी के बारे में, आपके व्यक्तित्व, लाइफ के बारे में आपको कुछ कठिनाई हो रही। कई लोग बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लेकिन लॉस हो जाता है, तो ये ऐसी चीज़ें आप ना करेंगे ना। ये देखिए, थोड़ा भी आपको लग रहा है कोई दुखमंद है, उसकी सहायता कर लीजिए। आपको लगेगा कि ये तो आप, हाँ, इतना मैथमेटिक्स आप यूज़ करते हैं, सब अपने कैलकुलेशन, लेकिन आप यहाँ बता रहे हैं कुछ और। हाँ, ये करिए जो मैं कह रहा हूँ, किसी दुखमंद के साथ उसके साथ जुड़ जाइए। मैंने तो कहा था दिवाली टाइम पे भी आप भले फटाकड़े नहीं जलाइए, कोई किसके घर में निधन हो गया है तो उसके साथ रहिए।
गुरु नानक जयंती आ गई, कई लोग साथ में फैमिलीज जाते हैं लंगर पे, सब साथ में जाते हैं। पर इस बार मैंने देखा कि किसको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, उनके घर में निधन हो गया। एक तो माताश्री ना रहे, लेकिन फैमिली के कोई भी दूसरे जो बच्चे थे वो उसके साथ चले नहीं, बेचारा अकेला बैठा रहा। ऐसा ना करें। नमस्ते।